Welcome to this edition of Market Mantra, in which will give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे। प्रमुख खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब सबसे पहले हेडलाइंस जिन्हें आप तक ला रहे हैं अर्जुन चौधरी। Country's GDP growth drops to a 7-year low of 5% in the first quarter of this fiscal. Government announces 4 major mergers of public sector banks. Merger to bring down total number of government-owned banks to 12. Government also addresses governance issues in banking. And on the stock market, Sensex climbs to 64 points. Nifty advances 75 points. Rupee jumps 38 paise against US dollar. देश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि की दर मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कम होकर 7 वर्षों के न्यूनतम स्तर 5% पर आ गई। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 4 प्रमुख विलयों की घोषणा की। इस विलय के बाद सरकारी बैंकों की कुल संख्या कम होकर 12 हो जाएगी। सरकार ने बैंकों में शासन से जुड़े मुद्दों पर भी किया गौर। और शेयर बाजारों में सेंसेक्स 264 अंक बढ़ा, निफ्टी 75 अंकों की तेजी में, रुपए में डॉलर के मुकाबले 38 पैसे की मजबूती। In our top story, India's economic growth dropped to a 7-year low of 5% in the April to June quarter of this fiscal due to a sharp deceleration in the manufacturing sector and sluggish agriculture output, according to official data released today. The economic growth was 8% in the same quarter of 2018 to 19. The manufacturing sector grew at 0.6% in the first quarter of this fiscal over a growth of 12.1% in the same quarter previous fiscal. Agriculture grew 2% in the same quarter of the financial year 2019-20 as compared to 5.1% in the year 2018-19. Mining sector grew at 2.7% in the same quarter. Electricity, gas, water supply and other utility services grew at 8.6%. Construction sector grew at 5.7%. Financials, real estate and professional services grew at 5.9%. The previous low growth in GDP was recorded at 4.9% in the same quarter of the financial year 2012 to 13. Puneet, how do you look at these growth figures for India as compared to not only last year but as far back as 2012-13? So clearly, Arjun, these numbers are very disappointing because India, to grow, if we have to meet our financial objectives, fiscal objectives and the welfare objectives of the country, then India must grow at around 7-8%, at least at about 7% annually, because we have a growing population, we have a young population. So any growth which is below 5% is definitely not good for the country, and it will not be able to sustain jobs and employment opportunities. So clearly 5% is something that we have to be concerned about. However, I must add that these numbers were quite anticipated because we already had the corporate earnings season which came to an end recently, and they reported numbers for the April-June quarter. So those numbers told us that the growth for the industrial sector is not strong in the first quarter. And also anecdotally, I mean, we know about passenger car sales going down, we know about several other sectors of the economy, steel sector in particular, not doing well. So clearly, anecdotally, we knew that the numbers are not going to be very good. From corporate earnings data, we knew that the slowdown was there. Now, of course, we have the numbers which sustain this. However, I must add that these are numbers which look at the past data.
And how this is going to pan out in the next, I think, few quarters is something to be seen really. इनफैक्ट आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट आई कल FY19 के लिए, उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है स्लो डाउन को हेड ऑन ले रही है सरकार, भी ले रही है, आरबीआई भी एक्सेप्ट कर रही है, और उसके लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे आपको क्या लगता है कि कितनी सफलता आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा? पिछले फ्राइडे को काफी मेजर्स अनाउंस हुए और अभी भी आज भी विलय हुआ है बैंक्स का, जिस पर हम आगे चलकर विस्तृत चर्चा करेंगे, और भी कई स्टेप्स उठाने की बात कही है वित्त मंत्री ने। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रोएक्टिव अप्रोच? देखिए, जो नंबर्स हमारे पास जीडीपी के सामने हैं हमारे, उसमें इसको मैं मुख्यतः 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसे कह सकते हैं आप, एक सर्विसेज सेक्टर है और एक एग्रीकल्चर सेक्टर है। ये 3 ब्रॉड डिविजन्स हैं जीडीपी की। जो सर्विसेज सेक्टर है वहां पर भी थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन और सर्विसेज सेक्टर जो है करीब 55% ऑफ द जीडीपी वो कंप्राइज करता है। वहां पर हम देख रहे हैं कि स्लो डाउन तो है, लेकिन उतना ज्यादा स्लो डाउन नहीं है। जो ज्यादा हिट हम देख रहे हैं जीडीपी ग्रोथ में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जहां पर 12% ग्रोथ थी पिछले वर्ष, वो अब करीब करीब 0 फ्लैट हो गई है। और एग्रीकल्चर ग्रोथ जो 5% से ज्यादा थी पिछले साल, वो अब 2% से भी कम रह गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर ये 2 सेक्टर्स हैं जहां पर हम ज्यादा हिट देख रहे हैं। और जो सरकार भी कदम उठा रही है वो मेरे ख्याल से टारगेटेड है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और रूरल सेक्टर के ऊपर। रूरल सेक्टर जिससे एग्रीकल्चर काफ़ी प्रभावित होता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये कदम सही दिशा में है। लेकिन देखिए, जैसे आरबीआई ने इस वर्ष के शुरुआत में, फरवरी ऑनवर्ड्स, हमने देखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने तेजी से इंटरेस्ट रेट कट किए हैं और लिक्विडिटी सिचुएशन इंप्रूव करी है। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक अच्छा कदम है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि नॉर्मली जब लिक्विडिटी इंप्रूव करता है सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो उसको करीब 9 महीने से 1 साल लगता है उसका इंपैक्ट आने में। तो मेरा अपना अनुमान है कि बाय एंड ऑफ दिस ईयर जो लिक्विडिटी क्राइसिस चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, और लिक्विडिटी नहीं थी कंपनीज के पास और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास, वो सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए टुवर्ड्स एंड ऑफ दिस ईयर। साथ ही जो कंजम्पशन बढ़ाने के लिए जो कदम उठाए हैं सरकार ने अभी पीछे, उससे भी एक फायदा होगा। प्लस मैं ये बताना चाहूंगा कि जो 1.76 लाख करोड़ का जो आरबीआई ट्रांसफर करने वाला है सरकार को, सरप्लस जो है आरबीआई का, उससे गवर्नमेंट जो है वो काफी कंजम्पशन को बूस्ट कर सकती है। तो ये मुझे लगता है कदम है जो आने वाले 6 महीने में शायद उसका असर हम देखेंगे। आपने इंटरेस्ट रेट्स की बात की। इंटरेस्ट रेट्स जो कटौती करता है आरबीआई, उसका ट्रांसमिशन हमेशा एक इशू रहता है कि ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है। 110 बेसिस पॉइंट्स किया उन्होंने 3-4 बार में, उसका सिर्फ 40 बेसिस पॉइंट्स तक ही ट्रांसमिट हुआ, एंड यूजर तक पहुंचा, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो चाहे वो रिटेल लोन लेने वाले हो। अभी जो थोड़ी सी कमान कसी है सरकार ने और आरबीआई ने भी कि रेपो रेट से इसको लिंक करना होगा, और 2-3 बैंक्स ने ऑलरेडी इस पर कदम भी उठाया। आपको लगता है कि ये शायद ट्रांसमिशन को बढ़ावा देगा और उससे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को? नहीं, आप सही कह रही हैं, लेकिन देखिए, जो ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं है। अगर इकोनॉमी में लिक्विडिटी डेफिसिट होगा तो ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही पैसा देने वाले लोग अगर कम है और लेने वाले लोग ज्यादा हैं, तो ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स कैसे हो सकता है? इंटरेस्ट रेट तो हाई रहेगा। तो जब तक आप लिक्विडिटी सरप्लस नहीं करेंगे सिस्टम के अंदर, तब तक ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स नहीं हो सकता। और अभी हाल तक अप्रैल मई के महीने तक जो सिस्टम में लिक्विडिटी डेफिसिट था और उसकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब आरबीआई ने काफी बड़े पैमाने पे लिक्विडिटी बाजार में बढ़ाई है, जिससे मुझे लगता है कि ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स होगा। यदि हम मॉर्गेज रेट्स की बात करें, होम लोन की, रिसेंटली एसबीआई ने अब वो होम लोन रेट्स जो है वो 8% या 8.5% या 9% के रेट कर दिए। मुझे लगता है उससे डिमांड बढ़ेगी। इसी प्रकार से आप कंज्यूमर लोन्स की बात करें तो डेफिनेटली ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स हम अब देख सकते हैं कि इकोनॉमी में हो रहा है। पर जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी कदम का जो असर है वो हम 6 से 9 महीने में उसका असर हम रियल इकोनॉमी में देखते हैं। Puneet, you spoke about the transmission of rates so that businesses and individuals can have easy access to credit. They can grow their personal life and of course business as well, which has a direct impact on employment and income levels also. What about the coming fiscal? Statistically speaking, we have just discussed about April to June quarter, but right now we are in the July to September quarter. Are we likely to see an improvement as compared to the statistics of the previous quarter?
Arjun, very difficult to say whether we will see a very marked improvement in the current quarter, which is basically July, August, September quarter. But definitely the quarter beginning October should show some traction. I expect that things will improve because primarily because liquidity conditions have improved. Secondly, this will be a festive season. Beginning October, we will see more consumer demand, and there are a number of things happening. In fact, in the automobile sector, in the financial sector, in the housing sector, I think a lot of steps which are now being taken will make an impact somewhere later this year. So my own sense is that this quarter may not be that big, may not be that big in terms of growth. But I think beginning October or in the later half of this year, we could see a significant improvement on these numbers. पुनीत, आरबीआई ने जो सरप्लस जैसा अभी आपने कहा कि ट्रांसफर किया है 1.76 लाख करोड़ सरकार को, जिससे इमीडिएटली उनके पास एक पैसा आया है जिसको कह रहे हैं कि इकोनॉमी को बूस्ट देने में यूज किया जाएगा. क्या लगता है आपको, कौन से ऐसे मेजर एरियाज हैं जहां पर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सकता है सरकार द्वारा? फिस्कल मेजर्स क्या? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को जो सरकार की लायबिलिटीज है टुवर्ड्स, जैसे जीएसटी रिफंड की लायबिलिटी है, जैसे स्टेट्स को पैसा देना था सेंट्रल गवर्नमेंट ने और वो काफी डिले हो रहा था. तो जब सरकार के पास सरप्लस लिक्विडिटी होगी तो, और या मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को, इनफैक्ट गवर्नमेंट की जो पेमेंट्स ओवर ड्यू हैं टुवर्ड्स बिजनेसेस, जीएसटी रिफंड ही नहीं सोनू, बिजनेसेस नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विसेज हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज हैं, सरकार का काफी पैसा बकाया है बिजनेसेस को देने के लिए. तो गवर्नमेंट अपनी ये बैकलॉग क्लियर करेगी. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम स्लो डाउन की बात कर रहे हैं, इसकी जो मूल कारण है स्लो डाउन का, वो क्रेडिट क्राइसिस है. बेसिकली आज से 2-3 वर्ष पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब बैंकिंग सिस्टम को सुधार, उसको रिफॉर्म शुरू करे, तो उन्होंने साथ साथ क्रेडिट स्क्वीज करा था और इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे और क्रेडिट स्क्वीज किया था. शायद एनपीएस की स्थिति को देखते हुए, ना सिर्फ एनपीएस की, उनका मानना यह था कि इन्फ्लेशन विल बी अ थ्रेट, जबकि बिल्कुल गलत अनुमान था आरबीआई का, इसमें कोई शक नहीं है. गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा, उनके जो साथी थे विरल आचार्य के द्वारा लगातार उन्होंने गलत अनुमान लगाए इन्फ्लेशन के. और इनफैक्ट अगर आप पिछले साल तक के आरबीआई कमेंट्री पढ़ेंगे तो वो यही कहते रहे कि इन्फ्लेशन इज अ थ्रेट, इन्फ्लेशन इज अ थ्रेट, और इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखते रहे. बहुत ही जो वो उस दौर में जो रिजर्व बैंक ने लिक्विडिटी टाइटन करी, इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, उसका हम असर देख रहे हैं कि जो क्रेडिट क्राइसिस इंडिया के इकोनॉमी में आया, वो अभी उसका असर हम देख रहे हैं. उसको रिजर्व बैंक जो प्रेजेंट गवर्नर है या प्रेजेंट जो आरबीआई है, उसको रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है, पर जैसा मैंने कहा कि उसमें समय लगता है. और जो बैंकिंग क्षेत्र से जो लिक्विडिटी अब जैसे गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइजेशन कर रही है, तो ये सब अब कदम जो है वो लिक्विडिटी को इंप्रूव करेंगे. मैं मानता हूं, और ये इकोनॉमिक्स में काफी हमको पढ़ाया भी जाता है, कि लिक्विडिटी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए. चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर. बैंकिंग उद्योग में सबसे बड़ी एकीकरण प्रक्रिया में सरकार ने आज सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 4 प्रमुख विलयों की घोषणा की. वर्ष 2017 की 27 संख्या से अब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या कम होकर 12 रह गई है. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक के साथ किया गया है और यह देश का दूसरा सबसे विशाल सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होगा. ये घोषणाएं करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक से किया जाएगा और इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक के साथ किया जाएगा. आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ होगा. श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक पहले की तरह ही कार्य करते रहेंगे क्योंकि उनका मजबूत क्षेत्रीय फोकस है. सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का संचालन बेहतर करने के लिए भी कुछ कदम उठाए हैं. नए नियमनों के अंतर्गत अशासकीय निदेशक की भूमिका वही होगी जो स्वतंत्र निदेशकों की होगी. बैंकों के बोर्ड अब स्वतंत्र निदेशकों को दी जाने वाली फीस भी खुद तय कर पाएंगे. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के लिए आंशिक ऋण गारंटी योजना लागू कर दी गई है. 3,300 करोड़ रुपए का तरलता समर्थन दिया जा चुका है और 30,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त समर्थन देने पर कार्य किया जा रहा है. ये जो विलय हुआ है बैंक्स का, इसके प्रमुख एडवांटेजेस क्या है? किस तरह से ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को, इकोनॉमी को क्या इससे एडवांटेजेस होंगे, क्या मदद मिलेगी? सुनो, देखिए, यदि हम आज से करीब 1 या 2 वर्ष पहले जाएं तो भारत में 27
पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, जिसमें सबसे बड़ा बैंक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यही कुछ ऐसे बड़े बैंक थे जिनका ग्लोबल बिजनेस आप कह सकते हैं कि करीब 7-8 लाख करोड़ रुपया सालाना, उससे ज्यादा था। बाकी सभी बैंक जो थे वो रिलेटिवली काफी छोटे थे, और वो लेकिन उनका जो विस्तार था पूरे देश में था। तो आपको देखेंगे आप कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की जो ब्रांचेज हैं वो आपको दिल्ली में भी मिलेंगी, बल्कि पंजाब में भी मिलेंगी, ऐसा भी होता है। तो ये बैंक जो छोटे बैंक थे वो काफी विस्तृत फैले हुए थे, विस्तार था, और इसलिए वो अपना फोकस ढंग से काम नहीं कर पाते थे। पिछले 2 वर्षों में हमने, और जो आज का जो मर्जर अनाउंस हुए हैं उसके बाद जो संख्या है बैंकों की 27 से घट के 12 रह जाएगी। उन 12 में भी 6 बैंक ऐसे होंगे जिनका कंबाइंड बिजनेस 15 लाख करोड़ से ज्यादा का उनका बिजनेस होगा। यानी ये 6 के 6 बैंक जो हैं वो ग्लोबल लेवल के बैंक्स होंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, अपना यूनियन बैंक। तो ये जो बैंक्स हैं, ये बैंक्स ग्लोबल साइज के बैंक्स होंगे। 15 लाख करोड़ से 20 लाख करोड़ की इनकी एक तो साइज होगा बिजनेस का। सेकेंडली जो कंबाइंड एनपीएस है, क्योंकि इन सभी बैंक्स में क्या हुआ है कि प्रॉफिटेबिलिटी बैंक्स में बढ़ गई है, और जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 18 में से 14 बैंक्स ने पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट डिक्लेयर किए थे। तो यानी जो एक इशू था बैंकिंग प्रॉफिटेबिलिटी का, वो भी अब खत्म हो गया है। तो इतने बड़े 6 ग्लोबल बैंक्स भारत में होंगे। तो ये बैंक्स के अंदर एक तो देखिए, जब फाइनेंसिंग करेंगे तो एक अकेला बैंक भी बड़े प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर पाएगा। पहले क्या होता था, कंसोर्शियम बनाना पड़ता था 20, 25, 30 बैंक्स का, और एक तो वो मिलकर के फाइनेंसिंग करते थे, फिर उनके अंदर कोई डिफरेंसेस होते थे तो कंपनी को सपोर्ट नहीं कर पाते थे। अब हम देखेंगे कि 2 या 3 बैंक्स मिलकर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी फाइनेंस कर पाएंगे, या एक अकेला बैंक बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो क्रेडिट फ्लो है टू इंडस्ट्री वो बहुत बेहतर होगा। साथ में ये बैंक्स जो हैं ग्लोबल लेवल पे कॉम्पीट कर पाएंगे। डेफिनेटली बहुत अच्छा कदम है, और मुझे लगता है कि अगेन आने वाले समय में हम इसके काफी लाभकारी असर देखेंगे। Just looking at this consolidation of net, the non-performing assets, how will the consolidation, the amalgamation, merger, whatever you want to call it, resolve the NPA to a manageable level of under 2%? Okay, under 2% is a very ambitious target, but Basel III, which is the global norms for banking, they say that the net NPAs should be below 6%. In fact, they say the net NPA should be below 5%, but in India, we have taken 6% as a fair norm for banks to come down, to bring down the NPAs, net NPAs to. Most of the banks that which have now are being merged, in fact, I was looking at the figures put out by the finance minister, and clearly most of these banks are already close to 6%. They're slightly above 6% or something, but post merger and post recapitalization, which the government is now doing, these banks will be able to bring down the NPAs immediately to less than 6% on the NPA level. Also, the provision coverage ratio, the kind of money banks have provided to cover for bad debts, has now risen to 75%, more than 75% in fact. So clearly NPAs are no longer, the past NPAs are no longer an issue for banking sector, in the sense that they are able to deal with those NPAs, and most of those have now been written down. Of course, banks are concerned about fresh NPAs, because slowdown leads to fresh NPAs, fresh stress in the economy. So there will be an adjustment of the NPA figure. Mostly that is under control. I think NPA figure in the banking system related to past credits, I think that is now under control. I wouldn't say it is ideal. Ideally, it should ideally come down to 3-4%, but already it is about 6%, which is okay, because then I think banks, given the current operational profits of the banks, they should be able to handle that. पुनीत, जहाँ तक कंजम्पशन स्लोडाउन का सवाल है, उस संदर्भ में जो एनबीएफसीज पर जोर दिया जा रहा है, उनको वो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंतर्गत जो लिक्विडिटी प्रोवाइड की गई है ऑलरेडी 3,300 करोड़ की, और लिक्विडिटी पर भी गौर किया जा रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और ये कैसे हेल्प करेगा? सुनो, देखिए, हमको एनबीएफसीज का रोल क्या है इकोनॉमी में उसको समझना होगा। जबकि ज्यादातर डिपॉजिट्स या जो पैसा है वो बैंकिंग सिस्टम में, अगर आप डिपॉजिट करने जाते हैं बैंक में, आप एनबीएफसी को पैसा देने में हिचकिचाएंगी, लेकिन बैंक में आप अपना एफडी बड़े आराम से कर देंगी। तो भारत में सिचुएशन ये है कि जो पैसा है, लिक्विडिटी है, वो बैंकिंग सिस्टम में, उनके पास डिपॉजिट्स हैं, लेकिन जो एनबीएफसीज हैं
वो स्पेशलाइज क्रेडिट डिसबर्समेंट कर सकता है छोटे ग्रुप्स में, यानी छोटे एरिया में एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल को, तो उनकी वो स्किल है। अभी तक एनबीएफसीज ने बोरो करके पैसा लेंड किया था, लेकिन जो क्राइसिस चल रहा है लिक्विडिटी का, उस वजह से एनबीएफसीज पैसा मुहैया नहीं करा पा रहे, उनके पास पैसा रेज भी नहीं कर पा रहे। तो सरकार ने एक मिडिल पाथ निकाला है जहां पर वो एक तो उनकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है लिक्विडिटी को, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो एनबीएफसीज बंद ना हो या वो डिफॉल्ट ना करे। सेकेंडली उन्होंने को ओरिजिनेशन, यानी जो कस्टमर है वो एनबीएफसी लेकर आएगी क्योंकि उसके पास नेटवर्क है, उसके पास नॉलेज है, डोमेन नॉलेज है, और जो बैंक फिर वो बैंक के पास कस्टमर को ले जाएंगी, तो उसको को ओरिजिनेशन कहते हैं। यानी कस्टमर को लेकर के एनबीएफसी आएगी, लेकिन अल्टीमेटली लोन जो है वो बैंक उसको सीधा देगा, नॉट थ्रू एनबीएफसी बट बैंक्स विल डायरेक्टली गिव लोन्स टू रिटेल कस्टमर्स। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक कदम है, जिससे कि एनबीएफसी की स्ट्रेंथ को भी हम लेवरेज कर पाएंगे और जो बैंक के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उसको भी मैनेज कर पाएंगे। आइए अब रुक करते हैं शेयर बाजारों का, जहां से अच्छी खबर है। शेयर बाजारों में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.7% की तेजी से 264 अंक बढ़कर 37,333 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.7% की ही तेजी से 75 अंक बढ़कर 11,023 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां वृद्धि तुलनात्मक रूप से अधिक रही। बीएसई मिड कैप सूचकांक 1% बढ़ा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.8% की बढ़त दर्ज हुई। At the stock markets, the Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed to 64 points, 0.7% to close at 37,333 today. The Nifty at the National Stock Exchange advanced 75 points or 0.7% to 11,023. In the broader market, the BSE Mid Cap Index added 1% and the Small Cap Index rose 0.8%. Market breadth on the BSE was positive. Among the sectoral indices, the metal index was a leading gainer, climbing 1.8%. FMCG and healthcare indices advanced 1.7% each. Realty index added 1.3%. IT and tech indices rose 0.8% each. Consumer durables index gained 0.7%. BankX moved up to 0.6% and the auto index climbed 0.5%. Among declining indices, the power index lost 0.6%. Capital goods index slipped 0.5% and the oil and gas index shed 0.2%. Among PSU banks, United Bank of India shot up 9.8%, Andhra Bank spurted 8.2%, Syndicate Bank jumped 6.9%, Bank of Maharashtra surged 6.5%, UCO Bank climbed 6.4%, Punjab and Sindh Bank advanced 5.2%, Indian Bank added 4.6%, Allahabad Bank jumped 4.4%, Central Bank of India climbed 4%, IDBI Bank rose 2.3%, Corporation Bank gained 1.6% and Bank of Baroda added 0.8%. But Canada Bank shed 0.1%, Punjab National Bank fell 0.2%, SBI slipped 0.4%, Bank of India dropped 0.5% and Union Bank of India slipped 1.3%. Puneet, with this mega merger of banks now being reduced to 12 from 27 and 4 mergers to speak of specifically, even though we saw a rise in select PSU banks, we also saw a fall in many other PSU banks. What were the reasons? So basically, if you see the bank stocks which rose today were largely mid-cap stocks. So smaller banks which are getting merged into larger banks, they were the gainers because obviously, like I was saying earlier, they are seen as banks with somewhat weaker asset quality and somewhat weaker capital adequacy. So when they get merged with larger banks, their health improves. So clearly, and the larger banks, of course, to some extent, it is seen as a drag on their own profitability, which we saw in case of Bank of Baroda also, because Bank of Baroda stock actually went down a little bit after merger with Dena Bank and Vijaya Bank. So something similar, but of course, it is not strictly comparable because now even the smaller banks, the banks that we are talking about, which are to be merged, even they are profitable. So they will not be a drag on the larger banks, but they will actually add to profits of larger banks. But the market, I think, today wasn't able, because the announcement came after markets actually, and the smaller banks we saw, they rose because there was an anticipation in the markets that today this announcement will come. So how will this consolidation be valued when shares are issued to reflect the consolidation itself? If you are a shareholder of a small bank, how will you get the shares of a consolidated bank? What would be the valuation methodology for that? So of course, I mean it's a matter for experts, and in fact bank boards we still do not know the merger ratios. So after probably bank boards in the next few days will come out with their own proposals and will come out with a merger ratio for the banks. And
only then subsequently we will get to know. So generally, but what we can say is that the people, the shareholders will get the bank shares of the larger bank. For example, if OBC shareholder is there, then he is going to get shares of the PNB in exchange for the OBC shares, and so on and so forth. So clearly, I think this merger ratios will come later on, but usually it is these are valued on basis of book value of the company and the earnings, and to some extent on the basis of the market value of the shares. पुनीत, ब्रॉडली बहुत सारे फैक्टर्स हैं अभी जो बाजार को अफेक्ट कर रहे हैं. अभी आपको क्या लगता है आगे चलकर बाजार का क्या रुख रहेगा, क्योंकि इतने सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं, इतनी सारी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं, दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स थोड़े चैलेंजिंग हैं. सो ओवरऑल आपको क्या लगता है बाजार का क्या रुख रहेगा? आई एम ग्लैड आपने सवाल पूछा, बिकॉज ये ना काफी कंफ्यूजिंग सिचुएशन होती है कि इकोनॉमिक न्यूज तो अच्छी नहीं है, उसके बावजूद कई बार स्टॉक्स हम देखते हैं बढ़ते हैं, अभी गिर रहे हैं. देखिए, मैं आपको जो मेरे अनुभव में जो रहा है स्टॉक मार्केट का, स्टॉक मार्केट जो है वो लीडिंग इंडिकेटर होता है इकोनॉमी का, और हमने ये देखा है कि स्टॉक मार्केट्स जब इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही होती है तो स्टॉक मार्केट्स पहले डिक्लाइन करती हैं, और वो यूजुअली 6 महीने पहले टर्न अराउंड करती हैं, इकोनॉमी टर्न अराउंड से पहले. मेरा अपना मानना यह है, मेरा अपना अनुमान ऐसा है कि जो अब स्टॉक मार्केट का लेवल है ये बॉटम के आसपास है, और यहां से हम आने वाले दिनों में मार्केट्स में टर्न अराउंड देखेंगे और बेहतर लेवल देखेंगे. हालांकि इकोनॉमिक जो रियल इकोनॉमिक ग्रोथ है वो शायद 3 से 6 महीने बाद आए, और यदि वो टर्न अराउंड 6 महीने बाद आने वाला है इकोनॉमिक टर्न अराउंड, तो हम मार्केट्स में अभी से हम देखेंगे कि वो सेंटिमेंट जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर डालने से पहले देख लेते हैं रुपए में आज क्या हुआ. रुपया आज डॉलर के मुकाबले 38 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 71 रुपए 42 पैसे दर्ज हुई. उधर एशियाई बाजारों में आज अधिकतर बढ़त का रुख था, चीन द्वारा यह कहने के बाद कि वे अमेरिका द्वारा उन पर लगाए गए ताजा शुल्कों के जवाब में कोई कदम नहीं उठाएंगे. चीन और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता की आशाएं फिर पैदा हो गई. जापान का निक्केई सूचकांक 1.2%, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.8%, सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स सूचकांक 0.6% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.1% के बढ़त में रहा. हालांकि चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.2% की गिरावट आई. अगर यूरोपीय बाजारों पर नजर डालें तो दिन के कारोबार में लंदन का फुटसी 0.4%, फ्रांस का कैक 0.7% और जर्मनी का डैक्स 1% की वृद्धि पर थे. Moving on to the US market, the Dow Jones Industrial Average shot up to 326 points, or 1.3% to close at 26,362. The S&P 500 climbed 37 points, or 1.3% to end at 2,925, and the Nasdaq Composite Index jumped 116 points to 7,973. Just a brief comment on the way the US market and the Asian markets have been performing. So clearly these markets have now turned around. We saw a very sharp fall earlier, but I think the sentiment in the global markets is now turning around. Let's have a look at the oil market now. Brent crude shed 15 cents to trade at $60.93 a barrel. US crude oil futures dropped 56 cents to $56.15 a barrel. Oil market, you think the oil prices are coming down with a slowdown in global economy? Clearly, I think oil is really taking a hit from economic news, which is not very good in growth terms. And good for India. Good for India, definitely. चलते हैं सराफा बाजार की ओर. दिल्ली सराफा बाजार में सोना 500 रुपए की गिरावट से 39,720 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया. चांदी 450 रुपए की गिरावट से 48,600 रुपए प्रति किलो दर्ज हुई. चांदी के सिक्कों का खरीद मूल्य 1,000 रुपए कम होकर 1 लाख रुपए प्रति 100 सिक्के दर्ज हुआ. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न्यूयॉर्क के बाजार में सोना मंदी के साथ $1,527 प्रति आउंस पर था. क्या कहेंगे आप, सोने में जो कल हमने रिकॉर्ड तेजी देखी, 40,000 से ऊपर पहुंच गया था, 40,000 प्रति आउंस से, कितना आपको अभी लगता है सोने में और तेजी आ सकती है? हालांकि आज हमने गिरावट देखी है, क्या कारण है इस अद्भुत तेजी? देखिए, गोल्ड में जब तक इकोनॉमिक ग्रोथ कंसर्न्स रहेंगे, यानी डर रहेगा ट्रेड वॉर का, तो गोल्ड के दाम बढ़ेंगे. यदि वो डर खत्म होगा, यानी स्टॉक मार्केट्स में बेहतरी आएगी, तो हम देखेंगे गोल्ड के दाम नीचे आएंगे. तो ये मार्केट इस तरह से लिंक्ड है, इट इज इनवर्स, और इसी कारण से गोल्ड के दाम अभी बढ़ रहे थे और अब शायद शॉर्ट टर्म में वो थोड़ी गिरे. इंटरेस्टिंगली गोल्ड की ज्वेलरी की जो खरीदारी है वो कम हुई है क्योंकि रेट बहुत हाई है. बिल्कुल. क्या इन्वेस्टमेंट के तौर पर अभी सोना एक अच्छा विकल्प है? देखिए, एज अ सेफ हेवन इट इज अ गुड थिंग, बट मुझे लगता है ग्रोथ के हिसाब से शायद उसमें इतनी पॉसिबिलिटीज ना हो. कार्यक्रम का समाप्त हो रहा है, तो चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा. पुनीत आप आए, हमारे साथ विस्तृत विषयों पर चर्चा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद सुन.
Reminder of the headlines. The country's GDP growth drops to a 7-year low of 5% in the first quarter of this fiscal. Government announces 4 major mergers of public sector banks. Merger to bring down total number of government-owned banks to 12. Government also addresses governance issues in banking. And on the stock markets, Sensex climbs 264 points. Nifty advances 75 points. Rupee jumps 38 paise against US dollar. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. Market Mantra.